براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے پھر یہ آج موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے کلام کی باتوں سے اپنے لیے رہنمائی پا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ انسانیت کا رشتہ اور درد کا رشتہ، دیگر رشتوں میں شاید اس رشتے کی پہچان، اس کا احساس اور اس کی اہمیت نسل انسانی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے ساری خلقت کنبہ خدا کا، فرمان قرآن، فرمان بائبل، ایک انسان، بابا آدم اور مائی حوا، اس کی اولاد نسل انسانی۔ درد کا رشتہ، انسانیت کا رشتہ۔ پاکستان میں سانحہ آرمی پبلک سکول بہت سے بچے قتل کر دیے گئے۔ اس کی یاد میں تمام خاندان جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا سوگوار ہیں۔ ایک ماں کہہ رہی تھی کہ آنسو بہاتے رہتے ہیں، جب خشک ہو جاتے ہیں پھر اور بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انسانیت کا رشتہ، درد کا رشتہ۔ اور انہوں نے کہا، نہ صرف ہم آنسو بہاتے ہیں بلکہ پورے پاکستان میں انسانیت کے رشتے میں اور درد کے رشتے میں جن لوگوں کا ضمیر جاگتا ہے، جن میں انسانیت کی رمق باقی اور زندہ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہیں۔ اور میں ان تمام ماؤں کو، بہنوں کو اور خاندانوں کو جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا، میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جن لوگوں کے اندر انسانیت جاگ رہی ہے، جو آج بھی درد کو محسوس کرتے ہیں، شاید آپ نہیں جانتے کتنے لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ آنسو بہائے ہوں گے اور آج بھی بہاتے ہیں۔ اور سوال یہ کیا گیا کہ تعین کون کرے گا جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا؟ ہم دعا گو ہیں کہ خدا جو اتھارٹیز ہیں ان کو حکمت اور دانائی دے، اور دانائی کے ساتھ حوصلہ اور ان کو ہمت بھی دے کہ وہ سچ تک پہنچ کر سچ کو قبول کر سکیں، سچ کا اقرار کر سکیں، اور عدل و انصاف کے تقاضے جیسے پورے کرنا چاہیے ان کو ویسے کر سکیں، تاکہ اور مائیں اور باپ اور خاندان جو اس پاک سرزمین پر بستے ہیں، ان کو کل کوئی ایسی حالت اور صدمے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں خدا کا خادم ہوتا ہوا غم زدہ خاندانوں کے لیے، میرے ساتھ مہمان بھی ہیں، ہم امن کے لیے بھی دعا کریں گے، پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر ماؤں کے لیے اور والدین جو ہیں جو اس سانحہ میں صدمے کا شکار تھے، 4 سال ہونے کو آئے ہیں، ہم دعا بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سر؟ جی، میں خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سر، مسیحی ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں یا سکھ ہوں، معاشروں کی اقدار بدلتی جا رہی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پہلے آپ یہ بتائیے، یہ انسانیت کا رشتہ اور درد کا رشتہ یہ معاشروں میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ پھر ہم دعا کریں گے اور موضوع پر بھی بات کریں گے۔ تھوڑا سا اس کے تعلق سے بتائیے، آپ پوری دنیا میں آپ نے خدمت کی ہیں، آپ پاسٹر ہیں، چرچ کے اندر کے حالات سے بھی واقف ہیں، باہر کے حالات سے بھی واقف ہیں، مساجد اور گردواروں اور مندروں کے اندر کے حالات سے بھی واقف ہیں، آپ باہر کے حالات سے بھی واقف ہیں، چونکہ آپ سب لوگوں سے ملتے رہتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ انسانیت کا رشتہ اور درد کا رشتہ
اس کے بارے میں اپنے تجربے کی روشنی میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کو پھر سے نمو کس طرح سے پا کر پروان چڑھایا جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر دانیال، آپ نے سچ مچ ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر اس تار کو چھیڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا پاک جو محبت کا خدا ہے اور اس نے اس پاک محبت کو انسان کے دل میں ڈالا اور محبت کی ڈوریوں سے باندھ کر یہ خوبصورت رشتے ہمیں دیے، اور ان رشتوں کے ساتھ ہمیں اس سماج میں بھی بطور انسان رکھا۔ لیکن پاک کلام کہتا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ دوریاں، یہ جدائیاں اور یہ نفرتیں، ان کی دیواریں بہت اونچی ہو گئی ہیں، اور ہر مذہب اور ہر فرقہ اور لاسانی گروپوں نے خدا سے دوری اختیار کر کے آج خدا پاک کی محبت کو ٹھکرایا، خدا کے کلام کی حدوں کو پائمال کیا، اور آج یہ سبب ہے کہ آج خدا محبت سے دور ہو کر نفرت کی زنجیریں، نفرت کے اوڑھنے اوڑھ کر، کبھی کبھی اسے مذہب کا نام بھی دے کر اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وہ سچائی سے دور ہیں، اور صرف سچائی ہی انہیں آزاد کر سکتی ہے۔ اور آج میری دعا ہے کہ اس شو میں اکثر آپ اس سچائی کا ذکر کرتے ہیں، اور آج بھی یقیناً ہوگا کہ یہ صرف پاک کلام کی سچائی لوگوں میں نفرتیں ختم کر سکتی ہے، بہت چاہے ان شکریہ۔ کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو، لیکن خدا سب کا خدا ہے، پاک کلام سبھی کے لیے ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے یہ بات پہنچائی ہے کہ محبت کا فقدان اور بے دینی کا بڑھ جانا، بے دینی کے بڑھ جانے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، وہ بھی پاسٹر صاحب کی گفتگو میں واضح ہوا کہ خدا کے کلام کو ٹھکرانا، خدا کے کلام کی مخالفت میں دل کو سخت کر لینا، خدا کی راہوں سے منہ موڑ لینا، یہ بے دینی کے وہ رویے ہیں جنہوں نے انسانیت کا رشتہ اور درد کا رشتہ کمزور کر دیا ہے۔ پاسٹر صاحب، میں درخواست کروں گا کہ دعا کیجئے آرمی پبلک اسکول کے جو غمزدہ خاندان ہیں ان کے لیے، اور آج کے شو کے لیے، کہ جب ہم اس موضوع کو کھولتے ہیں خداوند کا روح القدس، خدا روح القدس ہماری مدد فرمائے، اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ مددگار ہیں اور شریک ہیں ان کے لیے بھی، اور جو لوگ اس شو کو دیکھیں گے، تاکہ خدا کا کلام ان کے دلوں اور ذہنوں کو کھول سکے۔ آئیے ناظرین، دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ پاسٹر پرویز صاحب دعا میں رہنمائی فرمائیں گے۔ جہاں جہاں بھی ایماندار ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیں، تاکہ ہمارا خدا جو رحم، ترس، کرم، فضل سے بھرا ہوا خدائے محبت ہے، وہ تازگی کے دن لے آئے۔ پاسٹر صاحب دعا فرمائیے گا۔ خدائے بزرگ اور برتر، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تو جو ساری قوموں، قبیلوں اور جاتیوں کا خدا، آج ہم مل کر تیرے حضور آتے ہیں اور ان مناجات کو آپ کے حضور لے کر آتے ہیں۔ اے خداوند، آج ہم خداوند ان سارے شہداء کو جو آرمی پبلک سکول میں، اے خداوند، نہتے ہمارے بچے مارے گئے، اے خداوند، آج بھی دکھوں کی ٹیسیں ان ماؤں سے اور ان گھرانوں سے اٹھتی ہیں، آنسو تھمتے نہیں، اور تھمے خشک بھی ہوں تو تازہ آنسو ان کی جگہ لے لیتے ہیں، لیکن تو جو ہمارے آنسوؤں کو پہنچنے والا خدا ہے، ہاللیلویہ۔ آج ہم ملتجی ہیں کہ خداوند
अपना मोहब्बत वाला हाथ बढ़ाकर आज उनके दिलों को भी तसल्ली दे और उनके आंसू पहुंच दे। और आज जितने भी खुदावंद इस करब और दुख से दो चार हैं खुदावंद पाक सरजमीन पर, उन सब के लिए भी हम आपकी कमाल तसल्ली और तशफ़ी मांग लेते हैं। आज के शो को तेरे हुजूर लाते हैं अपने उन सारे मददगार दोस्तों के लिए जो खुदावंद इस शो में किसी ना किसी तरह से खुदावंद उनका रोल है। उन सब के लिए हम हाथ उठाकर दुआए खैर करते, बरकत की दुआ मांगते हैं। और खुदावंद आज हम बिलखुसूस अपने सामाईन पर चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत की चादर उन सब पर भी आए और आपके पंखों तले आज कलाम की तसल्ली की एक हवा, एक झोंका आए खुदा, उनके दिलों को भी तसल्ली से भरे और इस कलाम की सच्चाई से आए खुदावंद वो रूशनास होकर, बहरावर होकर एक कबूलियत की रूह और एक कायलियत की रूह के साथ इस पाक कलाम को कबूल करे। खुदावंद तू अपने बंदों के साथ हो जो आज खुदावंद तेरे पाक कलाम के वसीला से और खुदावंद इस शो के वसीला से तेरे हजूर हैं। हम सारे सामाईन पर जो सुन रहे हैं या बाद अज़ाएं से सुनेंगे, उन पर तेरी बरकत चाहते हैं। उनके घरानों के लिए हम तेरी बरकत मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर परवेज़ साहब कि आप हमारे साथ शरीक हैं। दुआ के लिए शुक्रिया। मज़ीद आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, हम क्रिसमस के मौसम में हैं और इस पूरे महीने में आप ज़िंदगी टीवी पर, दीगर जो मसीही चैनल्स हैं, वहाँ पर आप क्रिसमस के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर वो बातें जो आज हमारे लिए ज़रूरी हैं आप देखेंगे, सुनेंगे। चूँकि क्रिसमस का मरकज़ खुदामंद यस्सु अल मसीह की ज़ात, मसीही उनको खुदामंद मानते हैं, मुसलमान बहन भाई उनको नबी मानते हैं। लेकिन आज भी उनकी ज़ात से मुतल्लिक़ा बहुत सी चीज़ें जो दोनों अध्यान में बयान की गई हैं, शायद कुछ को आज भी लोग या तो गलत तरह से समझे हैं या समझे ही नहीं, या शायद समझे भी हैं तो नज़रअंदाज किया गया है या उनसे मुंह मोड़ा गया है। और खुदा ताला हमें बार बार चीज़ें इसलिए याद दिलाता है चूँकि वो हमारी शख्सियत से, हमारी इंसानी फ़ितरत से वाकिफ़ है कि हम भूल जाने वाले लोग हैं और कोई भी बात हरफ़े आखिर नहीं होती। ये बातें शायद सदियों से पहले भी कही गई होंगी, कही जा रही हैं और बाज़ औक़ात ये ताज़गी के लिए भी होती हैं। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि कोई भी बात हरफ़े आखिर नहीं। खुदा मुसलसल बर वक्त जहाँ पर जिस भी दौर में इंसानों को जिस बात की ज़रूरत होती है, खुदा ताला वो याद दहानी के लिए करवाता रहता है। अगर इसकी मिसाल आप देखना चाहें तो जो तुरेत की पहली 5 कुतुब हैं, आप उनको पढ़ें, बहुत सी बातें बार बार दोहराई गई हैं। तो यीशु मसीह इस्लाम और मसीहत में उनको बतौर निशानी पेश किया गया है। तो निशान पहचान के लिए होते हैं। आइए ये कुछ निशान मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ याद दहाने के लिए। पिछला जो शो था उसमें भी आप पिछला शो भी देखिए और ये सिर्फ याद दहाने के लिए ताकि आप बातदरीज बातों को समझ सके। तो आइए ये देखते हैं। निशानात के 2 हमारे पास ये स्लाइड्स हैं, ये देखते हैं। पहली स्लाइड दिखाइएगा और फिर दूसरी दिखाइएगा। ये आप कुछ निशान देख रहे हैं। ये निशान किस लिए होते हैं? ये पहचान के लिए हैं। अगर ये निशान किसी बिल्डिंग पर हों तो आप पहचान लेते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर अगर सलीब है तो यहाँ पर मसीही इबादत करते होंगे। अगर चांद सितारा है या उसके नीचे जो है
आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारे सिख बहन भाई परस्तश करते हैं। यहाँ पर बच्चों ने कपड़े भी पहने हुए हैं, लिबास जो है उससे, और जो माथे पर तिलक है और ये जो निशान हैं ये मुख्तलिफ़ मज़ाहब को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो निशानात पहचान के लिए दिए जाते हैं। तो जब सूरह अल इमरान में लिखा है कि आओ मुश्तरका बात की तरफ, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, तो मुश्तरका बात यह है कि मसीहत में और इस्लाम में जब ज़ातुल मसीह की बात आती है तो उनको निशानी के तौर पर बयान किया गया है। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ आयात जहाँ पर यह बयान किया गया है, ताकि आप सब देखें कि कोई भी बात सियाकुस बात से हट कर हम नहीं करते। कोशिश ये होती है कि लोग पहचान तक पहुँचें। तो इसमें हम देखेंगे कि जब उनकी ज़ात की बात की गई है तो निशान के तौर पर कौन कौन सी बातें हैं जो हम तक पहुंचाई गई हैं और जिन्हें समझने की, जानने की, तहकीक करने की, आशनाई की आज भी ज़रूरत है। तो आइए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पर निशानी बयान किया गया है। ये सूरा 21 है और उसमें हम देखते हैं, ये गौर कीजिएगा, और उस खातून को देखो जिसने अपनी असमत की हिफाजत की थी, फिर हमने उनके अंदर अपनी रूह फूंकी और उन्हें, गौर कीजिए, और उनके बेटे को दुनिया जहान के लोगों के लिए एक निशानी बना दिया। दो शख्सियात हैं, मुकद्दसा मरियम उनकी बात, और लिखा है उनके बेटे को। यहाँ पर गौर कीजिए, कुछ लोग अक्सर कहते हैं जी एक कौम के लिए, एक वक्त के लिए पैगाम, तो शायद वो गौर नहीं करते। तो यहाँ पर आज गौर कीजिए, ये तर्जमा मैं आपको दिखा दूँ। पाकिस्तान के जय्यद उलमा में बहुत मोतबर नाम है, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, आसान तर्जमा कुरान। तो गौर कीजिए, दुनिया जहान के कितने लोगों के लिए? दुनिया जहान के लोगों के लिए एक निशानी बना दिया है, तमाम ज़मानों के लिए। और अगर कोई शख्स ये कहे कि तमाम ज़मानों के लिए नहीं है, तो मैं आप तमाम हज़रात की नज़र एक आयत करना चाहता हूँ। सूरह अल इमरान और उसकी 55 आयत पढ़िए, और वहाँ पर लिखा है क़यामत तक जो पैरवी करेंगे। कब तक? अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये मैं बड़ी तरतीब के साथ कोशिश करूँगा कि हमारे मुसलमान बहन भाई और मसीही पूरी दुनिया में जहाँ हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई अक्सर पूछते हैं उनसे कि क्रिसमस के बारे में बताइए, तो आप उनकी कुतुब का इस्तेमाल कीजिए और फिर इस निशानी में क्या है इसको समझा कैसे जाएगा, इस तरफ हम जा रहे हैं। तो कहाँ दुनिया जहान के लोगों के लिए, कब तक? सूरह अल इमरान 55 आयत, क़यामत तक जो भी पैरवी करेंगे। मैं अभी आयत भी आपको दिखाता हूं, लेकिन इसके साथ क्या बनाया है? निशानी बना दिया है। और जब निशानी की तफसीर की जाती है तो वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर तकी उस्मानी साहब ने इस बात को खोला भी है कि उसकी तफसीर क्या होती है निशानी की, तो वो भी मैं बताऊंगा, और फिर जो असल बात है उसकी तरफ भी आएंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है, इससे मुराद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैं कि अल्लाह ताला ने उनके बेटे हज़रत ईसा को बग़ैर बाप के पैदा करके उन्हें अपनी कुदरत कामला की एक अजीम निशानी बना दिया है। तो पहली बात यहाँ पर निशानी के लिए तकी उस्मानी साहब फरमा रहे हैं, बग़ैर बाप के पैदा करके निशानी बनाया है। तो एक बात तो ये हो गई। आइए अब दूसरी बात देख लेते हैं कि एक निशानी ये कहा गया कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, ये निशानी है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात देख लेते हैं, ये अभी हम चलते हैं सूरह अल इमरान में, और जो बात मैंने आपके सामने रखी है, पूरी दुनिया में अगर कोई भी शख्स कॉल करना चाहे तो सूरह अल इमरान 55 आयत पहले पढ़ ले, उसके बाद सूरह मरियम और उसकी 21 और उसकी 31 आयत भी पढ़ ले, अरबी में भी पढ़ ले
और उर्दू में भी पढ़ ले। दोनों जगहों पर लिखा है यीशु मसीह की पैरवी क़यामत तक और तमाम दुनिया जहान के लोगों के लिए। अब ये सोचना पड़ेगा कि उलमा इस बात को क्यों बयान नहीं करते। अब ये जो आयात मैंने आपके सामने रखी हैं क़यामत तक की, जितने भी उलमा हैं और जो मदरसों में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए अहबाब हैं, पढ़ के उनमें लिखा है क़यामत तक। पढ़िए और गौर कीजिए, सोचिए, दुआ कीजिए और फिर ज़रूर कॉल कीजिए। पढ़े बगैर कॉल ना कीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि दोनों जगहों पर लिखा है क़यामत तक। सूरह, फिर बता रहा हूँ, सूरह अल इमरान है 55 आयत है, सूरह मरियम उसकी 21 और 31 आयत है, क़यामत तक। तो जो लोग ये कहते हैं ना उनकी तालीम, उनकी शरीयत बस एक दौर के लिए, एक वक्त के लिए, तो वो मेहरबानी किया करें, अपनी किताब ही पढ़ लिया करें कभी। और उसके साथ सूरह अल माइदा उसकी 46वीं आयत से 48वीं आयत भी पढ़ लिया करें कभी। उसके साथ ही सूरह अल निसा और उसकी 82 वर्स भी पढ़ लिया करें कभी, ताकि वो बात जो दरअसल उनकी ज़ात की हकीकत को खोलती है उससे आशनाई दुरुस्त सम्मत में हो जाए। तो आइए देख लेते हैं पहली निशानी बगैर बाप के। तो दूसरी निशानी अक्सर जो कहते हैं वो क्या है, वो भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये है सूरह अल इमरान और जो आयत मैंने पहले आपके सामने रखी 55, वो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, फिर दूसरी निशानी की तरफ आता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा लूँगा और जिन लोगों ने कुफर अपनाया है उनकी अज़ा से तुम्हें पाक कर दूँगा। जिन लोगों ने तुम्हारी अतबा की है उनको ये देखिए, क़यामत के दिन तक उन लोगों पर गालिब रखूँगा जिन्होंने तुम्हारा इनकार किया है। जिन लोगों ने तुम्हारी इत्तबा मतलब पैरवी की है, जो ईमान लाए हैं, उनको क़यामत तक, तो उन पर ईमान लाना, उनकी पैरवी करना, कब तक? क़यामत तक। तो आइंदा अगर कोई कहे ना, मेरे जितने मसीही उलमा सुन रहे हैं, पास्टर साहबान हैं पूरी दुनिया में, फिर बता रहा हूं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ रेफरेंस दीजिए, यीशु मसीह नासरी की पैरवी। फरमाने कुरान किसी मसीही को, आज मैं बड़ी दिलेरी के साथ खुदा का खादिम होता हुआ रेफरेंस के साथ बात करता हूं, यीशु मसीह की पैरवी क़यामत तक दुनिया जहान के लोग। और अगर आज कोई कहता है कि यीशु मसीह की पैरवी एक दौर और मखसूस ग्रोह, मखसूस कौम के लिए थी और उनकी शरीयत मनसूख हो चुकी है, तो ये आयात जिनका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, ये ना तो मुतशाबे हैं और ना ही मनसूख हैं। कोई लिस्ट है पूरी मनसूख आयात की भी और मुतशाबे आयात की भी, और मेरे पास भी है, तो आप उनका भी मुतालिया कर लीजिए। और फिर क्रिसमस के सीजन में ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि ये फरमाने कुरान है, मुतशाबे नहीं है, मनसूख नहीं है। तो आज जो कोई शख्स ऐसी बातें करता है वो पहले अपनी किताब को पढ़े और उसके बाद जरूर बात करें। हम लाइव होते हैं, जरूर अपना नुक्ता नजर पेश करें, लेकिन किस बुनियाद पर करेगा? ये बुनियाद, जिस बुनियाद पर कोई कहता है जी वो तालीम एक वक्त के लिए ख़त्म हो गई है, मनसूख हो गई है, ये आयात पढ़ ले और आइंदा एहतियात करे बात करने से पहले। और मसीही उलमा, पास्टर साहबान, मैं आप तमाम अहबाब की नज़र कर रहा हूँ, ये ना तो मुतशाबे हैं और ना तब्दील हैं।
ये आयात मौजूद हैं। पहली आयत मैंने रखी, दूसरी भी आप पढ़ लीजिए। तर्जमा तकी उस्मानी साहब ने कमाल कर दिया है। अगर तकी उस्मानी साहब के कोई शागिर्द या उनके मकतबा फ़िक्र के लोग इस शो को देखते हैं तो तकी उस्मानी साहब का बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मेहनत से तर्जमा किया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम इस्तेमाल करते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं। यस्सु की तालीम, यस्सु मसीह की पैरवी, यस्सु मसीह पर ईमान लाकर जिंदगी पाना क़यामत तक दुनिया जहान के लोगों के लिए है, और ये फरमाने कुरान है। अब आ रहे हैं हम दूसरी निशानी। सुनते रहिए गौर से और जानिए पहली निशानी बगैर बात के। दूसरी निशानी यहाँ पर आ जाते हैं हम, 49 आयत में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। फिर निशानी आ गई, और वो निशानी ये है कि तुम्हारे सामने गारे से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ और वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। और फिर ये सारे मोजज़ात हैं। और जब तकी उस्मानी साहब इसकी बात करते हैं तो वो ये जो मोजज़ात हैं इनको वो कहते हैं कि ये मोजज़ात निशानी हैं। तो ये आपके सामने मैंने रखा, मोजज़ात बग़ैर बाप के पैदा होना निशानी है। फिर यहाँ पर जो मोजज़ात हैं वो निशानी हैं। और अगर कोई शख्स कॉल करना चाहे तो ज़रूर कॉल कीजिए, और मैं चाहूँगा कि जो लोग कॉल्स लेते हैं, अगर कोई शख्स कॉल करे तो ज़रूर कॉल ले लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दो निशानियाँ हमें मिलती हैं जो उलमा कहते हैं, और दीगर भी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र में मुख्तलिफ तरह से निशानियाँ बयान की गई हैं। तो हमने देखा कि दो शख्सियात का ज़िक्र है, निशानी बनाया गया है, और फिर मोजज़े और बग़ैर बाप के पैदाइश को निशानी कहा गया है। और अक्सर उलमा ये कहते हैं कि बहुत सी बातें जो आपको समझ नहीं आती कुरान में से, तो अहादीस की रोशनी में उनको समझिए तो वो आपको समझ आ जाती है। तो आइए ज़रा ये क्लिप देखते हैं और फिर मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाता हूँ। आइए ये क्लिप देखते हैं। वो खुदा और वो अल्लाह जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के उलमा ने अपनी पब्लिक को जिसका तारुफ करवाया है, वो खुदा और है। और जो खुदा कुरान और सुन्नत के अंदर जिसका करैक्टर आया है, जिसका किरदार आया है, जिसकी पर्सनैलिटी आई है, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बिल्कुल और है। इसीलिए वो जब हम कोई बात किताबों सुन्नत से करते कहते हैं सीधा आज तक सुनी नहीं। हालांकि इनको पूछे कि आपने कितनी माशाल्लाह पीएचडी की डिग्री कर ली है कुरान और सुन्नत में, आप क्या आपके बाउजदाद ने भी एक दफा कुरान पाक ही पूरा तर्जमे से नहीं पढ़ा हुआ, तो आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमने तो आज तक ये बात सुनी नहीं है। भाई हमने, आपने नहीं सुनी तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये कुरान पाक में लिखी है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा रिसर्च स्कॉलर हैं, और ये जो भी कोई बात करते हैं वो रिसर्च के बाद करते हैं, ये मुकम्मल तहकीक करते हैं और तहकीक करने के बाद फिर बात करते हैं। और मैं इनकी दलेरी को भी सलाम पेश करता हूँ। इन पर भी चंद दिन पहले कातिलाना हमला हुआ था। हमारी दुआ है खुदावंद इनकी सलामती रखे ताकि ये रिसर्च वर्क करते रहें। अब उन्होंने कहा क्या है, गौर कीजिए क्या कह रहे हैं कि वो किरदार, वो सफ़ात जो कुतब में हैं, उलमा बर्रे सगीर बिल्कुल उसके उल्ट तालीम दे रहे हैं। ये क्लिप छोटा सा है और मैं चाहूँगा कि इसको दोबारा से चलाइए ताकि लोग ये सुने वो क्या क्या कह रहे हैं, और फरमाने कुरान को देखें तो वहाँ पर तकरीबन 26 अंबिया इकराम का जिक्र है। तो अगर वो अपनी तालीम ही दुरुस्त नहीं दे रहे, आइए ये क्लिप फिर देखते हैं। मैं चाहता हूं दोबारा से ये क्लिप चलाया जाए और सुने और देखें तमाम लोग, और फिर मैं इस पर बात करता हूं। चलाइए जरा ये क्लिप दोबारा। वो खुदा और वो अल्लाह जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के उलमा ने अपनी पब्लिक को जिसका तारुफ करवाया है, वो खुदा और है। और जो खुदा कुरान और सुन्नत के अंदर जिसका करैक्टर आया है, जिसका किरदार आया है, जिसकी पर्सनैलिटी आई है, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बिल्कुल और है। इसीलिए वो जब हम कोई बात किताबों सुन्नत से करते कहते हैं सीधा आज तक सुनी नहीं।
حالانکہ ان کو پوچھیں کہ آپ نے کتنی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی ہے قرآن و سنت میں, آپ کے اباؤ اجداد نے بھی ایک دفعہ قرآن پاک ہی پورا ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا, تو آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں ہے. بھائی ہم نے, آپ نے نہیں سنی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ قرآن پاک میں لکھی ہے. جی, انہوں نے کہا کہ جو باتیں ہیں وہ بتائی نہیں گئیں, جو بتائی گئی ہیں وہ کتب میں نہیں ہیں. تو جب خداوند یسوع المسیح, آپ پیغمبر مانتے ہیں عیسیٰ المسیح, تو میں آج یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے تعلق سے جو باتیں پھر آپ تک پہنچائی گئی ہیں, غور کیجئے, ان کے تعلق سے جو تعلیم پہنچائی گئی ہے, ان کی ذات کے مختلف پہلوؤں پر جب روشنی ڈالی گئی ہے, تو کیا وہ پھر درست تعلیم آپ تک پہنچائی گئی ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں کہ جو علماء بر صغیر ہیں, اصل بات انہوں نے پہنچائی نہیں. تو جب ذات المسیح کی بات ہوتی ہے, جب ان کی تعلیم کی بات ہوگی, جب ان کی شخصیت کی بات ہوگی, تو کیا وہ تعلیم آپ تک درست طور سے پہنچی ہے؟ یہی بات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ سچائی سے واقف ہو سکیں. اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بڑی نشانی بتائی نہیں گئی, ہم نے دیکھا کہ دو شخصیات مقدسہ مریم اور یسوع مسیح نشانی بنایا گیا ہے. تو اس نشانی میں کون سی بات ہے جو آپ تک نہیں پہنچی؟ اگر پہنچی ہے تو شاید آپ سمجھے نہیں یا آپ نے نظر انداز کیا ہے. تو آئیے یاد دہانی کے لیے پھر سے دیکھتے ہیں. میں آپ کو لے چلتا ہوں, مشکات شریف ہے, یہ پہلا والیوم ہے, اور اس میں میں آپ کو صفحہ نمبر 38 پر لے جاتا ہوں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے, تو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جی, کال لے لیتے ہیں, پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہ براہ راست شو فضل روی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. کون صاحب, کہاں سے بات کیجئے, آپ آن ایئر ہیں. میں پاسٹر ناصر اقبال کیلیفورنیا سے بات کر رہا ہوں. پاسٹر صاحب ویلکم. جی, کسی نے آپ کا پروگرام ریکمینڈ کیا تھا. آئی ریئلی اپریشیٹ آپ کے پروگرام کو, اور خاص طور پہ میں آپ کے کہنا چاہتا ہوں ایز اے ٹیچر کہ اس پروگرام میں جو سامنے نظر آتا ہے اس کے بعد بیک اینڈ پہ جو کام ہوا نظر آتا ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہوتی ہے, کتنی تحقیق کی ہوتی ہے. اس کے بعد میں کہوں گا لائیو پروگرام میں کتنا مشکل ہے جوش اور ہوش کے ساتھ پروگرام کو پیش کرنا, اور آپ جوش اور ہوش دونوں کے ساتھ اور اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹتے. اور یہی چیز کے لیے میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو مسا کیا ہے. یہ انانٹنگ ہے آپ پہ جس طریقے سے آپ اس پروگرام کو کرتے ہیں, اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور کہتا ہوں خداوند آپ کو اور نالج دے, اور جس طریقے سے پروگرام پیش کرتے ہیں اس کے لیے شکر کرتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے پروگرام تھا آپ کا نشانیوں کے ذریعے مسیح ظاہر ہونا, جس کو یوحنا کی انجیل میں اس نے سائنس کہیں, اور آپ نے کس طرح اسلام کی تعلیم سے اس کو ایکسپلین کیا کہ ان کے لیے بھی نشان تھے, نہ کہ مسیحوں کے لیے, دنیا کے لیے اور سب مذاہب کے لیے, سب لوگوں کے لیے نشان تھے. میں خدا ان کا آپ کے لیے بہت شکر کرتا ہوں, اور میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں اس پروگرام کے لیے اور آپ کی محنت کے لیے جو آپ اس پروگرام کے لیے کرتے ہیں. خدا آپ کو اور فزیکلی, ایموشنلی, اسپرچولی اسٹرینتھ دیں. آئی ریئلی اپریشیٹ ایز اے ویسٹ میں رہتے ہوئے, امریکہ میں رہتے ہوئے, we have opportunity to listen a lot of teaching, but when we hear from our own speaker in our own language, I really appreciate. I know how dangerous it is to explain the way you explain, but you are very boldly and enthusiastically. Just like Bible likha, zeal without wisdom is foolishness, but you use zeal with wisdom. I really appreciate. I pray and I could recommend many people other this program, especially your Urdu language, how you have, really, یہاں پہ رہتے ہوئے فورن میں
हम उर्दू से राब्ता तोड़ बैठे हैं, तो आपको सुन के अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छी उर्दू के आसानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, उन किताबों, मुश्किल किताबों को बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। पास्टर नासिर साहब हमारे साथ हैं और मैं पास्टर साहब शुक्रगुजार हूँ, और मैं इसका सारा जलाल खुदामंद यीशु मसीह को देता हूँ, और ये जो कुछ पेश किया जाता है ये खुदा रूहुल कुद्स की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इसके साथ जो दीगर लोग टीम में मेरे साथ हैं, मैं उन सब के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और आप चूँकि ख़ुद एक टीचर हैं, आपको किसी ने रिकमेंड किए ये शोज़, मैं उन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये शोज़ रिकमेंड किए और आपने उनको देखा और सुना और आपने हमें कॉल किया। ये सारा जलाल खुदामंद यीशु मसीह को है, और वो लोग जो हमारे मददगार हैं, किसी ना किसी तरह से साथ शरीक हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। और मैं चूँकि आप एक मैन ऑफ गॉड हैं, और मैं चाहूँगा कि आज आप इस शो के लिए भी दुआ कीजिए, ताकि आने वाले वक्तों में और जो शोज़ रिकॉर्ड हैं जब लोग देखते हैं तो खुदामंद उन सब की आंखें खोलें, ताकि वो खुदामंद यीशु मसीह की हकीकी आशनाई पाकर हमेशा की ज़िंदगी पा सकें, मोहब्बत से भर जाएं और पूरी दुनिया में बाबरकत हो जाएं। अगर आप हमारे साथ ऑन एयर हैं तो मेरी दरख्वास्त होगी आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। जी, मैं ज़रूर दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। और स्पेशली मेरी टीम और हम आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए दुआ करते हैं, इंटरसेशन करते हैं, अब आपके लिए भी दुआ करते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। दुआ कीजिए। खुदा जलाली बाल शुक्र करते हैं खुदा इस पूरे जिंदगी टीवी के लिए, और खास तौर पे खुदा इस प्रोग्राम फजल रब्बी के लिए, डॉक्टर डैनियल के लिए, खुदा जो हिकमत और कुव्वत आपने दी है इनको, खुदा जैसे इन्होंने इसका इकरार करते हैं कि खुदा पाकरू ये आपके बगैर नामुमकिन है। खुदा अपना और अपना हिकमत का रूह, अपनी दनाई का रूह खुदा पे ओंडे लें, और खुदा खास तौर पे उन बारीकियों को, उन वो जो तह की बातें हैं जो इंसानों की समझ से भी बाहर है, खुदा जो अपने बंदों को देना चाहते हैं, खुदा अपने बंदे डॉक्टर डैनियल को खुदा और हिकमत का रूह दें, खुदा इन पे अपना साया करें, खुदा इनके लिए, इनके पूरी टीम की प्रोटेक्शन के लिए खुदा करते हैं, इन्हें यीशु के खून में छपाते हैं। डॉक्टर डैनियल, उनके खानदान को, इनकी पूरी टीम को खुदा इन्हें हर किस्म के शैतानी हमले से बचा के रखें, देखे और अनदेखे जहान में। खुदा उन तमाम बुरी आत्माओं से, बदरूहों से, उन इंसानों जज्बात से, उन नफरतों से खुदा उन्हें छुपा कर रखें, और ये और आसानी और जुर्रत के साथ खुदा ये आपके कलाम को पेश कर सकें। खुदा आने वाले दिनों के लिए इनके दुआ करता हूँ, खुदा उन्हें ऐसे मौजू दें जो आज तक शायद लोग बात ना करना चाहते हो, तो खुदा इन शुक्र करते हैं आज तक जो इन्हें हिकमत दी है, और आइंदा के लिए खुदा इनकी मदद करे, इनके पूरे स्टाफ के लिए, सारे टेक्निकल स्टाफ के लिए, इंजीनियर्स के लिए, प्रोड्यूसर के लिए खुदा दुआ करते हैं, खुदा उनके साथ हो, उन्हें बरकत दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर नासिर हमारे साथ थे, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको, आपकी खिदमत को भी बहुत बरकत दे। सो रियली अप्रिशिएट सर, थैंक यू वेरी मच। आइए हम जारी रखते हैं, और अब हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे जो उलमा हैं वो कहते हैं कि जो बातें फरमाने कुरान हैं उनको समझने के लिए अहादीस को भी समझना ज़रूरी है। तो दो शख्सियात निशानी बनाया गया है, और जब अहादीस में इन दोनों शख्सियात का जिक्र आता है और तमाम बनीनो इंसान का जिक्र आता है, तो एक ख़ास बात खोली गई है, निशान बयान किया गया है। आइए अब वो निशान देखते हैं जो कुछ तमाम बनीनो इंसान के साथ गुजरता है, लेकिन इन दो शख्सियात के साथ वो नहीं है। वो क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, ये हदीस है कि आदम का कोई बेटा ऐसा पैदा नहीं किया गया जिसको पैदा किए जाने के वक्त शैतान ने ना छुआ हो। बस जिस वक्त शैतान उनको छूता वो तकलीफ से चीखता है, मगर मरियम और उनके बेटे को शैतान ने नहीं छुआ। अब ये
बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। फिर देख लेते हैं, आदम का कोई बेटा ऐसा पैदा नहीं किया गया जिसको पैदा किए जाने के वक्त शैतान ने ना छुआ हो। कौन छूता है? शैतान। बस यहाँ पर फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्फाज पर गौर कीजिए। आदम का कोई बेटा, तो तमाम इंसान क्या इसमें शामिल हुए या ना हुए? तमाम आदम की औलाद इसमें शामिल हुई या ना हुई? यहाँ पर हम देखते हैं, पैदा किए जाने के वक्त शैतान ने ना छुआ हो। बस जिस वक्त शैतान उसको छूता है वो तकलीफ से चीखता है, मगर मरियम और उनके बेटे को शैतान ने नहीं छुआ। फिर नीचे भी है, ये हदीस है। तो एक हदीस और आपके सामने रखता हूँ, और उसमें तशबीही ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, अहादीस चूँकि पैगम्बर इस्लाम के फरमान हैं, तो ये हदीस मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ दूँ। शैतान इंसान की रगों में इस तरह जारी और सारी है जिस तरह खून जारी और सारी है। किस तरह? शैतान, ये कॉलर हैं, इनके साथ बात करते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि दो हस्तियां हैं जिनको शैतान छू नहीं सका। जी, खुश आमदीद कहते हैं बराह रास्त शो फजल रबी में। कौन साहिब, कहाँ से आप ऑन एयर हैं? बात कीजिए। सलाम पास्टर जी। जी, आपकी भी सलामती हो। बात कीजिए, आपको पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं। जी जी पास्टर साहब, मैं आपके लिए सलामती की दुआ करता हूँ। खुदा आप सबको सलामती दे। और मैं क्रिसमस की मुबारकबाद भी आपको, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। और मैं एक दरखास्त भी करना चाहता हूँ कि पूरे सुनने वाले दुनिया को मेरी तरफ से क्रिसमस मुबारक है। जी, आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। हम भी आपकी सलामती चाहते हैं। कोई और बात करना चाहेंगे आप? मैं पास्टर जी बहुत खुशनूद हो रहा हूँ। आपको जो मैसेज मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास कोई सवाल है ही नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम इधर उधर हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी आवाज को सुने, मैसेज सुने। हम बहुत बरकत पा रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती रहे। खुदावंद में आप इसी तरह बरकत पाते रहे और खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करे। हमारी पास्टर साहब आपके लिए, जिंदगी टीवी चैनल के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए हम दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए, और जो दीगर दोस्त अहबाब भी हमारे लिए दुआएं करते हैं, हम उन तमाम अहबाब के शुक्रगुजार हैं। और हमारी दुआ भी यही है कि आप इन बातों को सीखें और बड़ी मोहब्बत के साथ, हलीमी के साथ, जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, जब वो हमसे पूछते हैं तो ये हवाला जात आपको देते हैं, ताकि आप उनके साथ मोहब्बत के साथ भी आप खुद पढ़िए और फिर उस पर आप खुद गौर कीजिए। तो यही हमारा मकसद है कि मोहब्बत के रिश्ते परवान चढ़ें, अंडरस्टैंडिंग हो, समझ हो, भाईचारा हो और मिलकर एक दूसरे के साथ रहा जाए। आपका बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से बात कर रहे हैं अगर बताना चाहें तो? मैं कोयटा से, कोयटा कैंट, पाकिस्तान। जी, बहुत शुक्रिया। खुदामंद आप सबको बरकत दे। कोयटा कैंट पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। मुनव्वर मसीह मेरा नाम है। जी मुनव्वर भाई, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में हमारी तरफ से तमाम अहबाब को टीवी की तरफ से भी क्रिसमस की बहुत मुबारकबाद दीजिए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और कॉल करते रहिए। जब भी आपका जी चाहे ज़रूर हमें कॉल करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। एक कॉलर और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब, कहाँ से? बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी हुई सारा आज का जो टॉपिक है उसको देखकर, और मेरे लिए तो हैरानकुन है कि आप कितनी खूबसूरती से तस्वीर का दूसरा पहलू ढूंढ लेते हैं। खुदावंद इस बात के लिए आपको, आपकी सारी टीम को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करता रहे। मुझे सिर्फ एक अजीब सा सवाल है मेरे दिल के अंदर के, अगर
پاکستان کے جو بڑے استاد لوگ ہیں اور اسلام کی تعلیم ان کے اندر ہے، اور جب وہ ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو کیوں ان کے لیے یہ مشکل ہے دوسروں تک یہ باتوں کو رکھنا؟ اور پھر ایک پاکستان میں جو ہوا ایک چلی ہوئی ہے، اسلام کا ایک عجیب سی شکل لوگوں نے بنا رکھی ہے، کیوں نہیں اس سے منہ موڑا جا سکتا؟ کیونکہ دوسری دنیا میں بھی بہت سارے ایسے مذہب اور ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی جو کم از کم اپنی کتاب ہے اس کو تو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ وہ چیزیں گہرائی سے اور چھپی ہوئی نکال کر سامنے رکھتے ہیں، جس سے نہ کہ صرف ہم کرسچن بلکہ وہ مسلم بھی، ان کو بھی روشنی نظر آنی چاہیے کہ حقیقت میں کیا کچھ لکھا ہوا، کیا بیان کیا گیا، اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہونی چاہیے۔ اور میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کے پروگرام کا، میں بہت کچھ سیکھتا ہوں اور ان باتوں کو میں آگے بھی شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح سے آسانی سے آپ گہری اور چھپی ہوئی باتوں کو سامنے لے آتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ پاسٹر ندیم صاحب بہت شکریہ، آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں پھر یہاں پر یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا سارا جلال خداوند یسوع مسیح کو ہے، اور خدا پاک روح اس کا شکریہ اور اس کو جلال ہے۔ اس کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور دیگر لوگ جو میرے ساتھ مددگار ہیں، ان میں آپ بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں، جس طرح سے بھی وہ مددگار ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور میرے ساتھ ایک مہمان ہیں، پھر ان سے بھی اس کا سوال کا جواب میں لوں گا۔ جب آپ تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت ہوتا ہے اور ایک منفی ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے دو قوتیں موجود رہی ہیں جس میں مثبت اور منفی دونوں موجود ہیں۔ اب سچ کو سچ بیان کرنا اور سچ میں آمیزش بیان کر کے اس کو آمیزش کر کے اس کو شامل کرنا، یہ بھی آج کل کے دور میں خاص طور پر بہت زیادہ ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور پھر بلکہ میں پہلے آپ کا سوال کا جواب دے دوں۔ وہ اس لیے کہ بہت سے لوگ بہت سی باتوں کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے، اور اس میں پیچھے ان کے محرک یہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا مکتبہ فکر یا ان کا اپنا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ چلتا رہے، اور لوگ ان کی پیروی کرتے رہیں۔ اگر سچ بات بیان کریں گے تو شاید پھر بہت کچھ کھونا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ بھی ہے۔ پاسٹر پرویز صاحب، آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں کہ لوگ درست بات، سچ بات کیوں بیان نہیں کرتے؟ پھر ایک اور کالر ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، مختصر طور پر بیان کیجئے گا۔ ہاں جی ڈاکٹر دانیال، یہ سچ ہے کہ سچائی کو قبول کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل لگتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب وہ سچائی بیان کرتے تو اس وقت کے جو علماء تھے، جو دینی عالم تھے، وہ بھی ان کی باتوں کو جھٹلانے کے لیے اگر ان کے معجزات تھے تو وہ کہتے کہ یہ بال-زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اس کی قدرت اور اس کی معجزانہ طاقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور آج میں سوچتا ہوں کہ آج بھی عالموں کے سامنے ان کی اپنی ایگو، ان کا اپنی حد درمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ان کی ہٹ دھرمی، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اسی تک محدود رہنا، اس سے آگے جو بات ہے اس تک نہ جانا۔ تو اس پر اور بھی بات کی جا سکتی ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب، آپ نے مختصر طور پر بتایا ہے۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کیجیے، آپ آن ایئر ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت مہربانی کہ آپ نے میری کال لی۔ میرا نام حافظ عبداللہ ہے، اور میں آج بہت خوش ہوں اس بات پہ جو کہ آپ نے ایک اچھا ٹاپک لیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں وقت کو مد نظر رکھتا ہوں شارٹ بات کروں گا کہ یہاں پر جیسا کہ آپ نے ایک نشانی کے بارے میں بتایا سورہ آل عمران میں، وہاں پر لکھا ہوا ہے انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین، اور بے شک میں تمہارے رب
की तरफ से तुम्हारे लिए निशानियां लेकर आया हूं। पहले नंबर पर किसकी तरफ से? तुम्हारे रब की तरफ से। और किन के लिए? लोगों के लिए। निशानियां कौन लेकर आया? अब देखना है निशानी किसकी है। और हम देखते हैं कि खुदा ने, रब ने क्या किया? मट्टी ली और आदम बनाया और उसमें जिंदगी का दम फूंका। और यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की निशानियां लेकर आया हूं। अब निशानी हमने जानी है किसकी? रब की। और रब की निशानी को पहचानने के लिए क्या करना है कि रब ने क्या किया कि मट्टी ली, गारा बनाया और आदम बनाया। और उसी तरह सैयदना यीशु मसीह ने क्या किया? गारे से परिंदे की शक्ल बनाई। जैसा रब ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हो गया, उसी तरह यीशु मसीह ने गारे से परिंदे बनाए, दम फूंका तो वो जीती जान हो गए। अब यहाँ पर वाजे हुआ कि तुम्हारे रब की निशानियां तुम्हारे लिए। रब की निशानी क्या है? वो जिंदगी देता है बेजान चीज को, और यीशु मसीह ने भी बेजान चीज को जिंदगी दी। इसका मतलब है रब को पहचानने की जरूरत है। ये रब की निशानी है कि जिंदगी देना। और यहाँ पर रब को वाजे हो गया, वही रब यीशु मसीह की सूरत में आया तो वो उसने भी जिंदगी दी। और नंबर 2, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक और निशानी। जैसा कि आपने बताया सूरह इमरान की 50वीं आयत में वहां पर लिखा हुआ है, वो हिल्लू अहलु लकुम बाज़ल्लाज़ी हुर्रिमा अलैकुम वजेदकुम बेयातिम रब्बिकुम फत्तकुल्लाह व आतिऊन। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें हलाल कर दी और कुछ हराम कर दी। रब के पास अख्तियार है हलाल और हराम करने का, किसी इंसान के पास नहीं। और ये रब की वो निशानी है कि जो हलाल और हराम करने की। अब रब की पहचान करने की बात है, रब को पहचानना जरूरी है कि उस रब ने जो मुर्दा को जिंदगी दी, जो कि हलाल और हराम किया, अब रब पहचान ले कि यीशु मसीह ही रब है। डॉक्टर साहब खुदा आपको बरकत दे और देता ही जाए हमेशा। खुदा हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। लेकिन हाफिज साहब आप तो चूंकि खुद हाफिज हैं तो वो तो कहते हैं कि वो अल्लाह के हुक्म से करते थे, तो इसका क्या जवाब देंगे? आपने ये बातें खोली हैं, बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया है, लेकिन वो कहते हैं जी वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, आज ये कि रब किसी का रब होता है, रब का कोई रब नहीं होता। रब का कोई रब नहीं होता, रब अपने हुक्म से करता है, किसी के हुक्म से नहीं। लेकिन वो तो तर्जमे भी करते हैं ना, खुदा के हुक्म से करते थे, अल्लाह के हुक्म से करते। तो आप हाफिज साहब हैं, आप हाफिजों को कैसे जवाब देंगे इसका? हाँ जी, यही बात मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को भी यही बात कहूंगा कि जो पहले आपने ये बात कही, फत्तकुल्लाह फाबुदू हाज़ा सिरात मुस्तकीम, फत्तकुल्लाह फाबुदू हाज़ा सिरात मुस्तकीम, कि तुम उसी रब की अतायत करो क्योंकि वही मेरा तुम्हारा रब है। और रब जो है, यही बात मैं शार्ट ये बात कहूंगा क्योंकि टाइम आपके पास भी थोड़ा और मेरे पास भी है, और खुदा ने जिंदगी रखी तो मैं जरूर ये बात किस टाइम आपके साथ खोलूंगा कि इंसान जो है उस पर मौत है, रब के ऊपर मौत नहीं। इंसान फाते नहीं हो सकता, खुदा फाते है, और जो फाते है उसको रब ही मानेंगे, उसको किसी के हुक्म का मोहताज नहीं माने। बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब बात कर रहे हैं कि रब को रब माने, लेकिन जब यीशु मसीह की ज़ात की बात आती है तो उसमें हमारे मुसलमान बहन भाई मंतक की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो हुक्म, जैसा मैंने हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपके पास भी वक्त कम है, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा हाफिज साहब की बात के साथ बात मिला देता हूँ। जब वो कहते हैं कि हुक्म से, खुदा के हुक्म से, हुक्म क्या होता है? कलिमा, अल्फाज। तो यीशु मसीह क्या है? खुदा का कलमा है। तो कलमा क्या है? जो कुछ खुदा कर सकता है वही उसका कलमा कर सकता है। अगर आप जज हैं तो आप जब कह देते हैं अपने मुंह से आज़ाद करता हूँ, तो वो फ़ौरन हथकड़ियाँ खोल देते हैं, मुजरम जो भी हो वो आज़ाद हो जाता है। किसने आज़ाद किया? कलमे ने। तो जो कुछ खुदा है वही उसका कलमा है। और अगर कोई कहे कि ये बात सच नहीं है तो हम यहाँ पर बैठे हैं, लाइव होते हैं, ज़रूर कॉल कीजिएगा। और ये शैतान छू नहीं सका यीशु मसीह को। क्यों?
आइए ज़रा चलते हैं पास्टर परवेज़ साहब, जल्दी से हमारे लिए पैदाइश की तीसरी बाब को पढ़ दीजिए, जिसमें जहाँ पर वो लिखा है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। अब हम देखेंगे, हमने देखा कि जितने भी आदम से पैदा हुए सबको शैतान छूता है, तो उसके पास कोई इख्तियार है छूने का, तो छूता है ना। तो यीशु मसीह को और मुकद्दसा मरियम को वो छू नहीं सका, तो क्यों नहीं छू सका? अब ये जो निशान दिया गया है, फिर वो किस तरह से इंसानों के लिए बरकत बनता है। आइए ज़रा ये देख लेते हैं कि निशानी बनाया गया है, निशानी कौन सी है देख लेते हैं। पास्टर साहब ज़रा पढ़ दीजिए, फिर हम बाकी जो हिस्सा है यहीं से जारी रखेंगे। जल्दी से पास्टर साहब, हमारा 1.5 मिनट है आपके पास। जी, पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब ने ये निशानी हमारे लिए पढ़ दी है कि औरत की नस्ल से जो आएगा, कंवारी मरियम से जो पैदा हुआ, वो क्या करेगा? वो अबलीस के सर को कुचलेगा, अबलीस उसे नहीं छुएगा, वो अबलीस को बर्बाद कर देगा। और इंसानों के लिए इस बर्बादी के बाद कौन कौन सी बरकत आएंगी, पास्टर परवेज़ साहब भी साथ होंगे जब हम इसका तीसरा हिस्सा करेंगे। तो हमने आपके सामने कुतुब में से रखा है, अब खोलेंगे कि इस निशानी के वसीला से शैतान के सर को कुचला गया, और शैतान के सर को क्यों कुचलना ज़रूरी था, कोई और क्यों नहीं कुचल सका? लिखा है आदम की नस्ल से सबको वो छूता था, तो कैसे कुचला, क्यों कुचला गया, क्या मकसद था? और वो खुदामंद यीशु मसीह के वसीला से पूरा हुआ, और उसमें कौन कौन सी बातें पाई जाती हैं जो बरकत के वो दरवाजे खोलती हैं जिसको हम जन्नत की राह कहते हैं। कैसे हुआ ये, इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं, जब इसका तीसरा हिस्सा करेंगे तो उसमें इन बातों पर गौर करेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर परवेज़ साहब से कि हमने दुआ से शुरू किया, तो आपके पास 30 सेकंड हैं, दुआ के साथ ही इख्तिताम करेंगे ताकि खुदा आंखें खोलें और लोग इन बातों को समझकर बरकत पा सकें। 30 सेकंड्स आपके पास हैं दुआ के लिए पास्टर साहब। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस शो के लिए। ऐ खुदावंद, जितना कुछ बताया गया, आज हम अपने सामाईन के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं, और हम दुआ मांगते हैं कि आज जिस अंदाज से, जिस तरीके से ये सारी सच्चाइयां खोली गई, और खुदावंद प्यारे खुदा, हमारे कॉलर्स ने भी जो इनपुट दी, आज हमारी दुआ है कि लोग इन सच्चाइयों को ऐसन तरीके से अपने दिल में बसा लें, और आज उनके लिए फजल मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पास्टर परवेज़ साहब हमारे साथ शरीक हुए। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने अपने फजल से ये मुमकिन किया कि हम ये शो कर सकें। खुदामंद आप सबको बहुत बरकत दे, अपना ख्याल रखिए। खुदामंद की सलामती आपके साथ हो। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।